स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल के महबूबपुर प्रांगण में शनिवार को नेशनल साइंस डे के अवसर पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों ने साइंस आधारित मॉडल्स का प्रदर्शन किया। आइए इन खूबसूरत और आकर्षक मॉडल्स को आपको भी दिखाते हैं। फेंकता है तो F फेंकता है, F फ्यूगल। सेंट्रीपिटल मतलब क्योंकि मूव को हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ रखा है और हम सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव को घुमा रहे हैं। सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स किस प्लैनेट के आसपास घूमते हैं? मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ये एक प्रोजेक्ट है फार्मर्स के हेल्प के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं हर दिन आए दिन खबर आती रहती है कि 14-15 हज़ार करोड़ों में और लाखों में जो फार्मर है सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है। वी हैव हमें स्मार्ट फार्मिंग, जिससे हम लोग फर्टिलाइजर्स और वाटर को मिक्स करके ऑटोमेटिक इसमें डाल सकते हैं। वी हैव ऑल्सो सोलर ट्री है, जो कि फ्लैश लाइट की वजह से सनलाइट की वजह से सारे एनर्जी को स्टोर करता है और वो इस गांव में प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जो कचरा फेंक दिया जाता है लाखों की संख्या में, उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास वायरलेस कार चार्जिंग भी है और हम लोग के पास यहाँ पे स्मार्ट पार्किंग भी है, जहाँ पे कार ऑटोमेटिक चार्ज भी हो सकता है। ओवरऑल ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग विलेज को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ केयर सिस्टम में। Good morning, sir. This is our project on physical features and river system of India. Here are rivers that flow into India. यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, 2 रिवर्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, जो कि है नर्मदा एंड ताप्ती। वो वैलीज़ के कारण स्टीप स्लोप्स, वैली के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं उसके कारण ईस्ट वेस्ट में फ्लो करते हैं। और बाकी सारे रिवर्स जो कि मतलब जितने भी रिवर्स हैं नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के, वो सारे रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। और यहाँ से जो मानसरोवर लेक से कुछ रिवर्स निकलते हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और यमुना। और इंडस रिवर पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिलता है। Good morning. Today we are representing AI-based moving robot. In today's modern innovation of AI and robot, we are today representing this robot which can move by its own, and there is an AI fitted in it, Alexa. Now I am going to explain you how is this robot move. There are many interesting function of this robot. First, it can move from one place to another with the help of motor and wheel in forward and backward direction. Second, it can lift its hand with the help of motor. This movement allows robot to lift an object. Third, the robot can move its head. This movement allows robot to look around. Finally, my robot can speak with the help of Alexa. This allows to guide, assist and help people. In today's modern era of AI and robot, we are making it for doing it. In this today's innovation, we are making it for doing it. This robot name is Jarvis 2.2. Thank you for listening. Thank you so much for listening our presentation. This is the model of atmospheric water generator. We all know that there is a moisture and water vapor present in the air. So we are using an atmospheric water generator. Our AWG converts the air into water by absorbing the air. Now coming to the second part of my project, water purification. If we have dirty water or impure water, we purify it using sediment filter to remove dust and particles. So my project can both generate water from air, purify that impure water. So it is of low cost and easy to use, and which makes it easier to understand. Thank you for listening. I hope you liked our model.
This is the project of human circulatory system and excretory system. It starts with the lung. When we inhale, oxygen is trapped in the alveoli where the gas exchange happens. Through there, oxygen is added to blood and then goes through pulmonary vein to heart, and then it moves through left atrium, left ventricle, then aorta, and then capillaries. The capillaries, where waste is stored after the respiration in the cells. The blood is mixed with waste, where then it goes to kidneys, where nephrons purify it, and after that the waste is in the form of urine moves to urinary bladder and then through urine outside the body, and the deoxygenated blood at the capillaries then moves from vein to then heart, inferior vena cava, right atrium, right ventricle, and pulmonary artery, and then to lungs. That's it, and thank you. ये प्रोजेक्ट है जो ये ब्लाइंड पीपल्स के लिए बनाए हैं। उन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी आएगा ये सेंस करेगा, साउंड निकालेगा। और ये एक स्टिक है जो हेल्प करता है नीचे के ऑप्टिकल्स को देखने में, ये भी साउंड निकालता है, जिससे वो लोग जान पाएंगे कि सामने में कुछ रुकने वाला चीज़ है तो वो लोग रुक जाएंगे। पूरा वर्क करता है ये आर्डिनो इसके यूज़ पे। ये सेंसर है जो डिटेक्ट करता है, साउंड निकालने में मदद करता है। बस, थैंक यू। हमने ये रिवर क्लीनर बनाया है जो कि नदियों को साफ़ करने के लिए, जैसे कि गंगा यमुना बहुत गंदे रहते हैं, इसीलिए हमने ये बनाया है ताकि गंगा यमुना और काफ़ी जो भी सारे ये बहुत सारे नदियां हैं वो गंदगी हैं उनको ये साफ़ कर पाए। और ये फायर एक्सटिंगाइज़र है जो कि ये फायर को बुझाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली है, लेकिन अगर कोई पीपल रहता तो इसमें उनकी जान भी जा सकती थी, और ये जान को भी बचाता है, और उसके बाद कोई घर या फॉरेस्ट कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया को भी बचाता है। धन्यवाद। The card which we all have prepared. This is a Arduino Bluetooth card. Means during the time of disaster, when there is a small opening, we can't, the rescue people can't go inside, but this card can get inside because this is very compact size, and here is a camera attached on it, and we can see it on that screen, so we can figure out that where are the people, and with this we will get to know more about that where are the people, and this is a time saving, like if we got to know that the people are there, so sir, we will do the rescue there only so that the people can get come back as far as possible. No ma'am, it is available only in the form of APK. Ma'am, like when we are doing coding, I have done this coding with the help of my maternal uncle. He is a software engineer. So when I was doing coding, he told me, I have asked from him that, ma'am, actually last night this happened, so I don't have much time to do develop an app and develop a website. इस मौके पर पहुंचे बच्चों के अभिभावक ने बच्चों को काफी सराहना की। इन लोगों ने स्कूल में इस तरह के आयोजन को बच्चों के प्रतिभावान बनने की राह में इसको माध्यम बताया। अच्छा है स्कूल, मेरे बच्चे यहाँ 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और टीचर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बच्चे पे ध्यान देते हैं टीचर भी। और साइंस एग्जीबिशन में आज मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। मैं स्कॉलर अवार्ड में आया हूँ, बच्चे को देख के बहुत खुश हूँ। ऐसे साइंस में बच्चे बहुत उसे नॉलेज होता है, हर तरह का इसमें किया जाता है, और बच्चे को बहुत जानकारी इसमें मिलती है, और हम लोग को भी देखने का मौका मिला, समझने का, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत अच्छा स्कूल है, और मतलब हर तरह का प्रोग्राम ये स्कूल में होता है। ये बहुत अच्छा स्कूल है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है ये स्कूल का। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा देख के बच्चों का प्रोग्रेस। बच्चों में इम्प्रूवमेंट अच्छा है, ऐसा पहले हमारे टाइम के स्कूल में सब नहीं था। बच्चे हमारे इस स्कूल में 7-8 ईयर हो गए, तो स्टार्टिंग से अच्छा डेवलपमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है सब देख करके, बहुत अच्छा, मतलब स्कूल का, टीचर लोग का और बच्चों लोग का ऐसे ही बढ़ते रहे, उत्साह बढ़ते रहे सब।
स्कूल की प्राचार्य स्मृति रावत ने बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों को अपने कौशल को विकसित करने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स में नहीं होता है, सिर्फ बुक्स में नहीं, बुक्स में भी होता है। तो आज हमारे जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो पिछले 15 दिनों से लगे हुए थे अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो अब आप देखेंगे कि मेरे बच्चों के अंदर इनोवेशन भी आया, मेरे बच्चों के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट भी हुआ, मेरे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम स्पिरिट, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग along with I would say a lot of क्वेश्चन आंसर करने के लिए जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ों को लेते हुए ये प्रोजेक्ट्स बनता है। और जो आउटकम होता है, ये सारे बच्चे जितने ही स्मार्ट है, मुझे लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा उनमें क्रिएटिविटी और आई वुड से माइंड डेवलपमेंट होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई थिंक more than 200 students, around about 200 students have participated. From each class, each section, one project was presented and each one had taken up a different theme. तो आप थीम भी मैच नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट नेम मैच नहीं होगा और कंसेप्चुअल लर्निंग बच्चे का बहुत अच्छा थ्रू प्रैक्टिकल वर्क होता है। एंड टुडे इज़ नेशनल साइंस डे। इस दिन के उपलक्ष्य में मेरे इतने सारे बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, इतने कॉन्फिडेंटली दिया और पेरेंट्स ने आकर के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के बाद भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह भी एक अच्छा तरीका है बच्चों को प्रोत्साहित करने का। इससे उन्हें अपने प्रयासों के लिए सम्मान और प्रेरणा मिलती है। Are we done? Thank you.